Hello, my dear student. Welcome to the subject name is business law, and today we are going to discuss very important topic, that is the discharge of the contract. Start with the meaning part. Discharge of the contract means termination and the legal provision of the end of the contract. Whenever the contract is end, जब contract जो होता है वो उसका end हो जाता है या terminate हो जाता है, ऐसे contract को हम discharge of the contract कहते हैं. As you know that the contract is basically performed to do something. तो कुछ काम को करने के लिए कॉन्टेक्ट किया जाता है. एंड द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पार्टी, अगर द ऑफर पार्टी is going to make an offer in the front of the acceptance party, and acceptance party intended to accept the offer, and both party fulfill their rule, their duties and the obligations and the promises सक्सेसफुली. जब दोनों पार्टीज अपनी ऑब्लिगेशंस और अपनी ड्यूटीज को फुलफिल कर देती है, एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. Let take with the meaning part. When the parties fulfill their respective obligations and their liabilities under the contract. Whenever the both party, offer and acceptance party, fulfill their obligation, fulfill their respective obligation, means offer party अपने obligation को fulfill करेगी and the acceptance party fulfill their obligations and their liabilities, उनके जो फर्ज होता है, they comes to and under the. तो जो कॉन्ट्रैक्ट की जो भी उनकी लाइबिलिटीज होती है, जिनका फर्ज होता है, दोनों अपनी ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज को फुलफिल कर देंगे. एंड इफ दे फुलफिल देयर ड्यूटीज, द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पार्टी, बोथ पार्टी फुलफिल देयर ड्यूटीज इन द कॉन्ट्रैक्ट, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज. तो मूविंग टूवर्ड्स द मोड ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो जब कोई कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कब होगा, इसके मोड्स क्या हो सकते हैं. व्हेन वी कॉल इट एज डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, देयर आर द 6 कंडीशन अंडर विच वी कैन से दैट दिस इज बेसिकली डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो 6 तरीके थ्रू, 6 मोड्स के थ्रू वी कैन डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट by the performance. The first one is by the performance. When the parties offer and acceptance party fulfill their promise, means both party perform their duties and obligations सक्सेसफुली. जब दोनों पार्टीज अपनी परफॉर्मेंस, जो कॉन्ट्रैक्ट की जो परफॉर्मेंस होती है, मींस जो उनकी ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस है और उनकी प्रोमिसेस है, उनको परफॉर्म कर लेगी both parties, offer and acceptance party, and this contract is known as discharge of the contract. और दोनों कॉन्ट्रैक्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर सक्सेसफुली दोनों ने अपनी परफॉर्मेंस, अपने प्रोमिसेस को फुलफिल कर चुका है. नाउ द कॉन्ट्रैक्ट इज कम्स टू द एंड, and this comes to the end of the contract is known as a we can say it's said to be a discharge of the contract. यहाँ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट completely fulfill कर दिया गया है. Now take an example of Peter and John. Now Peter will help and John will help to explain this example. Now Peter agreed to sell his bicycle to the John for the amount of 10,000 rupees to be paid by the John on the delivery of the cycle. Peter जो होता है basically a person है who ready to sell his bicycle to the John, and for this bicycle he want 10,000 rupees, and the Peter gives this bicycle to the John, and John paid the 10,000 rupees. दोनों ने अपनी ड्यूटीज और अपने प्रोमिस को फुलफिल कर चुका है. पीटर ने अपनी बाइसाइकिल जॉन को दे दी है, एंड जॉन हैज गिवन अ 10,000 rupees for that bicycle to the Peter, and this is the complete परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. दोनों ने अपनी ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज फुलफिल कर चुकी है. नाउ द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज. Now moving towards the second point, that is a by mutual agreement. Whenever the both party, offer and acceptance party agreed upon the certain new terms and condition, and mutually decide the new terms and condition of the contract. जब कोई भी पार्टीज होती है वो अपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ न्यू एंड टर्म्स कंडीशन लाती हैं, एंड दे डोंट हैव एनी इशू ओवर द चेंज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. दोनों म्यूचुअली एग्री है, एंड दे डोंट हैव एनी इशू ओवर द चेंज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेस करने से दोनों पार्टीज को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. इट मीन्स दैट वी कैन से द जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था, जो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें चेंजेस एंड टर्म्स एंड कंडीशन किए, दैट प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली discharged. So we can say this previous contract is said to be discharged because the new terms and condition of the contract is formed. So by the mutual agreement, both parties mutually agreed upon the new and terms and condition. This contract basically said to be discharged. तो discharge हो जाएगा पुराना contract and new contract is formed. Let's take an example of Peter and John. Again Peter and John हमारी help करेंगे इस example को समझने में. Peter owes 1 lakh rupees to the John and agreed to repay in a 1 month. Peter जो है वो
बोरो करता है 1 लाख रुपीज फ्रॉम द जॉन, एंड जॉन से अपने 10 लाख रुपीज लेता है और उसे प्रॉमिस करता है कि आफ्टर 1 पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल के बाद, ही विल पे द 1 लाख रुपीज टू द जॉन, वो रिपे करेगा 1 लाख रुपीज। बट ड्यू टू द सम अनसर्कमटेंसेस, ड्यू टू द कुछ सर्कमटेंसेस के कारण पीटर लॉस हिज जॉब, अपनी जॉब को देता है, एंड द पीटर रिक्वेस्टेड द जॉन टू एक्सेप्ट 75 rupees instead of 1 lakh rupees. And this is basically, he said that he will only able to pay 75 rupees as a final settlement, that he will only able to pay 75 rupees because he has lost his job, and for that condition पीटर कन्विंस द जॉन, और पीटर जो जॉन है, जॉन एक्सेप्टेड ऑन द डेट कंडीशन, he accepted the condition of the Peter and agreed to accept 75,000 rupees instead of 1 lakh rupees. Here the terms and condition of the contract is changed, because instead of 1 lakh rupees, the 75 rupees is repaid by the Peter. So as per the contract, 1 lakh rupees देनी चाहिए थी, but the Peter has paid or repay only the 75 rupees. But due to the new terms and condition, both party are mutually agreed. The previous contract, the previous जो terms and condition थी, वो क्या होगी, discharge होगी. तो we can say that the previous original contract, the original contract where the Peter has to pay only a 1 lakh rupees to the John, the previous contract वो basically due to the mutual consent, the previous contract is basically discharged. So this contract is said to be discharged because of the mutual agreement. Now moving towards the third point, that is by the impossibility of the performance. Impossibility of the performance के कारण भी जो contract होता है basically is called as discharge. तो impossibility means it impossible to perform any kind of a contract. So how it can happen? Again, the Peter and John will help to explain this example. Peter entered into a contract with the John to marry his sister Oliver. तो here the again the Peter है वो एक कॉन्ट्रैक्ट करता है जॉन के साथ that he will marry to John's sister, that is Oliver. Oliver से वो शादी करेगा after 1 year. However, the Peter meet with an accident. तो पीटर के साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है, and he became insane. And insane बनने के कारण he is incapable to enter into the contract. It is impossible for the Peter to marry Oliver. तो Oliver से वो शादी नहीं कर पाएगा. एंड दिस इज बेसिकली इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस. यहाँ पीटर जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा टू परफॉर्म द टास्क एंड द ऑब्लिगेशन एंड द प्रॉमिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एंड देयर इन दिस केस वी कैन से दैट ड्यू टू द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस लीड टू द डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. द कॉन्ट्रैक्ट हेयर इज एंड. तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली टर्मिनेट हो जाएगा बिकॉज द जो पीटर है, पीटर बिकम इनसेन एंड ही इज इनकैपेबल और इम्पॉसिबल फॉर द पीटर टू मैरी ओलिवा. तो यहाँ पर इम्पॉसिबल हो जाएगा परफॉर्म करना कॉन्ट्रैक्ट को. दिस वी कैन से दैट दिस इज द डिस्चार्ज ऑफ द contract. Now moving toward the fourth point, by the lapse of time. Whenever the contract is happen, there is a certain time period of is given, and if during the that period of a time contract is not happen, and if the time has been passed, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज डिस्चार्ज. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स और कंडीशन और टाइम पीरियड गिवन है, एंड इफ द जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आफ्टर लैप्स ऑफ टाइम के गुजरने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट अगर परफॉर्म होता है, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्चार्ज, इज सेड टू बी डिस्चार्ज. तो let again the Peter and John will help to explain this example. Peter taken loan from the John. यहाँ पर पीटर जो है वो जॉन से पैसे लेता है एंड लोन लेता है एंड एग्री टू प्ले अ इंस्टॉलमेंट एवरी मंथ फॉर द 5 years. अगले 5 सालों में वो अपनी इंस्टॉलमेंट में उस मनी को, उस अमाउंट को रिपे करेगा. एंड द पीटर इज ही डजंट पे इवन अ सिंगल इंस्टॉलमेंट. तब पी जो है वो सिंगल इंस्टॉलमेंट भी नहीं दे पाता है. एंड द जॉन जो है, जो जॉन है पर्सन, he few times he call him full times. He informed the John that he has not pay even in one installment. वो कुछ समय तक उसे बोलता है एंड देन गेट बिजी एंड टेक नो एक्शन. तो जॉन है बेसिकली बिजी हो जाता है और वो काफी समय तक उसको पीटर को नहीं कह पाता है कि तुमने मेरे पेमेंट नहीं किया है. एंड देन आफ्टर द 3 year of contract, he approaches to the court to the help the recovery his amount. तो बेसिकली जॉन क्या करता है, 3 साल के गुजरने के बाद
वो कोर्ट में जाता है एंड सी अ केस अगेंस्ट द पीटर। तो यहाँ पर क्यों जो कोर्ट है, द कोर्ट रिजेक्टेड हिज suit since he has crossed the time limit of the 3 year to recover his debt। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बच्चों यहाँ पर ये है कि 3 ईयर किसी भी लोन को रिकवर के लिए एक टाइम पीरियड लिमिटेड होता है। 3 साल के अंदर आप यू कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम कोर्ट। कोर्ट से आप 3 साल के बीच में ले सकते हो। इफ द 3 year हैज बीन पास्ड यू कांट सी अ केस अगेंस्ट एनी पार्टी। तो 3 साल के गुजरने के बाद अगर आप कोई भी केस करते हैं, अगर रिकवरेंस ऑफ द मनी फ्रॉम एंड टेक द हेल्प ऑफ कोर्ट, तो यहाँ पर कोर्ट आपकी हेल्प नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पर जो लिमिटेड टाइम पीरियड है वो बेसिकली 3 years का होता है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लैप्स ऑफ टाइम, जब कोई टाइम गुजर जाएगा एंड आफ्टर द टाइम्स लैप्स ऑफ द टाइम यू कांट एबल टू परफॉर्म दैट कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट गुजरने के टाइम पीरियड गुजरने के बाद आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देंगे क्योंकि टाइम पीरियड गुजर चुका है। लेट वी कैन ऑल्सो टेक एन एग्जाम्पल दैट इफ पर्सन सेड दैट एक पर्सन है जो आपको कहता है कि 2 दिन के अंदर आप मुझे रिप्लाई कर देना कि आप मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना चाहते हो नहीं चाहते हो, आप मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे। द वन पार्टी इज giving an offer to the another party that you, if you say yes to my contract after 1-2 year, अगर आप 2 साल के अंदर मुझे रिप्लाई कर दोगे तो वो आपके साथ कॉन्टेक्ट करेगा। बट आफ्टर द लैप्स ऑफ द 2 year गुजरने के बाद, आफ्टर द पासिंग द 2 years के बाद वो इंसान आपको रिप्लाई करता है कि यस मैं आपके कॉन्ट्रैक्ट को, आपके ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड था वो 2 साल का था, तो 2 साल के अंदर आपको रिप्लाई करना था, भाई यहाँ वो तीसरे साल में आपको रिप्लाई करेगा। तो दिस इज ड्यू टू द लैप्स ऑफ द टाइम, कॉन्ट्रैक्ट जो वो टर्मिनेट हो जाएगा, एंड हो जाएगा। So this is the condition. Now moving toward the fifth part, that through which we can say the contract is said to be discharged by the operation of law. Whenever the contract is discharged by the operation of law, जब भी कोई भी contract operation of the law के द्वारा discharge होता है, it means that whenever the one party or the both party is get in insolvent or डेथ ऑफ द प्रोमिसर, जब भी कोई भी प्रोमिसर और प्रोमिसर की डेथ हो जाएगी या इंसॉल्वेंस हो जाएगा प्रोमिसर, तो यहाँ पर ऐसे केस में जो contract is said to be discharged because the one party is get insolvent or the both party get insolvent, or it could be that one party is death die on the day of the contract। जब कोई भी पार्टी में कोई भी एक पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाए या किसी एक पार्टी की डेथ हो जाए, तो इट्स बेसिकली इम्पॉसिबल टू परफॉर्म द टास्क। तो यहाँ पर ऑपरेशन ऑफ लॉ मीन्स बाय द लीगली यू कांट एबल टू परफॉर्म द टास्क, क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन की डेथ हो गई है और दूसरा हो सकता है मे बी इट कुड बी द रीजन दैट इंसॉल्वेंस हो जाए। तो अगर दोनों केस में अगर इंसॉल्वेंस या डेथ हो जाती है तो यहाँ पर भी दिस कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी डिस्चार्ज, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो टर्मिनेट हो जाएगा, एंड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि वन पार्टी की डेथ होगी और एक पार्टी की इंसॉल्वेंस हो चुका है। तो दिस इज बेसिकली डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द ऑपरेशन ऑफ द लॉ। नाउ मूविंग टुवर्ड द लास्ट पॉइंट, दैट इज अ बाय ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच मीन्स होता है ब्रेक। Whenever the both party, you can say the one party, if the party to a contract failed to perform its obligation according to the time and place is specified, as you know that in a contract the time and place is specified and it should be a very clear in front of the both party। तो दोनों पार्टी को टाइम एंड प्लेस स्पेसिफाइड होते हैं इन द कॉन्ट्रैक्ट, एंड इफ द बोथ पार्टी और वन पार्टी फेल टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन एंड प्रोमिसेस इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड प्लेस, अपने टाइम्स एंड पीरियड प्लेस जो डिसाइडेड होता है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, इज नॉट एबल टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन विद इन द टाइम पीरियड फ्रेम एंड द प्लेस। अगर टाइम फ्रेम और प्लेस में वो अपने कोई भी पार्टीज, वन पार्टी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पार्टी, अपने टास्क को, अपनी ऑब्लिगेशन को, अपने प्रोमिस को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली सेट टू बी डिस्चार्ज ड्यू टू द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के ब्रेक डाउन होने की वजह से, फेल टू परफॉर्म होने के कारण कॉन्ट्रैक्ट को हम डिस्चार्ज कहेंगे, एंड दिस इज about the breach of the contract। तो यहाँ पर अगेन वी टेक द एग्जांपल ऑफ द पीटर। पीटर यहाँ पर जॉन से एक एग्रीमेंट करता है और एग्रीमेंट में कहता है कि यू विल डिलीवर आफ्टर मंडे, आपको मंडे में मेरा जो सामान है, गुड्स को डिलीवर करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जॉन एग्री हो जाता है, और जॉन एग्री होने के बाद जैसे मंडे आता है, ऑन द डे ऑफ द डे व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्चुअली परफॉर्म्ड, जॉन कॉल अप टू द Peter that he is not able to provide, he is not able to deliver the goods of the Peter,
तो पीटर का वो गुड नहीं डिलीवर कर पाएगा, एंड बिकॉज ही ड्यू टू दिस अनसर्टकम कुछ अपनी अपनी खुद की पर्सनल लाइबिलिटीज, कुछ अपने पर्सनल रीजन की वजह से नहीं कर पाएगा. नाउ दिस इज बेसिकली अ ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द बिहाफ ऑफ द जॉन. तो जॉन के साइड से बेसिकली यहाँ पर क्या हो गया, जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और टाइम और प्लेस था वो बेसिकली फुलफिल परफॉर्म नहीं कर पाया जॉन, एंड दिस इज बेसिकली ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के कारण जो कॉन्ट्रैक्ट वो बेसिकली एंड हो गया, कंप्लीट हो गया, टर्मिनेट हो गया. And this is all about the discharge of the contract that we have, what we have studied about the 6 point through which the discharge of the contract is is happen. तो 6 मोड के थ्रू हम कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं. तो ये तरीके हैं जिसके थ्रू कर सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट.